Hello students, this is Firdaus. Today I am going to teach you class 10 mathematics. Okay, today I am going to discuss very first chapter, that is real number. Okay, you all are know about the real number. You have already learned in your previous class, that is in class 9, about a real number. Okay, see, all rational and irrational or rational and irrational number combine to form a real number. Okay, so in this chapter we are going to know about the Euclid division lemma. Okay, you have already known about this topic. Okay, below classes you have already learned about the dividend. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, here remainder. Okay, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Same process is repeated here. See, A is a dividend and B is a divisor and Q is a quotient and R is a remainder. So let's say let A be any positive integers, then A is equal to BQ plus R, where R is less than or equal to, okay, R is greater than or equal to 0 and less than B. okay, यहाँ पे जो R होता है, रिमाइंडर क्या होता है आपका, 0 से बड़ा होता है और 0 के इक्वल हो सकता है या फिर डिविजर से छोटा होगा. ठीक है, तो ये आपका डिवीजन इक्वल डिवीजन लेमा से आपको क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करके आपको क्या फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड हियर इन दिस चैप्टर HCF. Our first exercise 1. Okay, in this exercise you have to find the HCF. Okay, it means what? HCF means highest common factor. Highest common factor. Okay, see, so I am going to solve exercise 1.1. okay, in this exercise you have to find the HCF by using a Euclid division lemma. Okay, so taking here two numbers, that is 64 and here 16. So let's prime factorize 2 3 ja, 2 2 ja, 2 16 ja, 2 8 ja, 2 4 ja and 2 2 ja. So here you have 64 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, and 6. Okay, and here again 6. 2 8 ja, 2 4 ja, 2 2 ja, 2 1 ja. So 16 you have 2 into 2 into 2 into 2. So HCF is what? HCF is what? 2 2 and 2. Okay, how many 2 here? 4 2. 2 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16. Okay, here 16 is the HCF of 64 and 16. So ये तो आपका हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये वाला फाइंड करने के लिए HCF. तो अब इस एक्सरसाइज में आपको बनाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को, लेमा का हेल्प लेना है. और लेमा क्या होता है? लेमा इज नथिंग बट प्रूवन स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट आपका प्रूफ कर चुका है तो वो है आपका. तो ये है कुछ नहीं, ये क्या है आपका, डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट है. तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमको HCF फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चन नंबर 1 of 1. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द HCF ऑफ दिस, है ना, these numbers according to division method. According to division method को फॉलो करते हुए आप लोग इसको फाइंड कर लीजिए. सो 135 इज डिविजर एंड दिस इज योर डिविडेंड. जो छोटा होगा वो क्या होगा, आपका डिविजर हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो आपका डिविडेंड हो जाएगा. ठीक है, ओके. देखिए यहाँ पे 135 1 जा 135 12 out of 3 9. okay, again 135. so here 19 1 ja 95 4. here 90 25 2 ja 90 25 2 ja 90. remainder is 0.
जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है उसका वाला डिवीज़र क्या होता है आपका, वो आंसर होता है HCF का. सो हियर यू हैव टू परफॉर्म बाय यूजिंग Euclid's division lemma. See here, dividend is what? Dividend is 225. Dividend is equal to divisor. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is your remainder. This is your divisor. Okay, and this is your quotient. Again here, remainder is not इक्वल टू 0. 0 के इक्वल नहीं है रिमाइंडर, तो क्या होगा, नेक्स्ट हमको फिर से ये प्रोसेस को इवॉल्व करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये बन जाएगा आपका डिवीज़र, रिमाइंडर बन जाएगा डिवीज़र, और ये बन जाएगा आपका डिविडेंड. सो अगेन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज योर 45. Again here remainder, that is 45, is not equal to 0. 45 is not equal to 0. So you have to perform this whole process again, repeat it again. Okay, so again you have to this is your what, this is your divisor and this is your dividend. So again 90 is equal to 45 into 2 plus 0. So here remainder is equal to 0. So the process is stop. So the process is stop. प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा. और जो डिवीज़र होगा, रिक्वायर्ड डिवीज़र इज अ HCF. सो HCF इज इक्वल टू 45. सो ये प्रोसेस है. आपको पहले डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लेना है रफ में, फिर उसको क्या करना है, या फिर आप फेयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है. ठीक है, बस यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखना है आपको. रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिपीट इट अगेन. ओके, सो अगेन हियर यू हैव टू राइट द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 45 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू हैव टू रिपीट द होल प्रोसेस अगेन. ओके, सो रिमाइंडर जो आपका सेकेंड स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये बन जाता है डिवीज़र और ये बन जाता है डिविडेंड. ठीक है, फिर अगर 0 नहीं आता है तो आपको इस तरह से रिपीट होते जाएगा. तो ये प्रोसेस है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से आपको HCF फाइंड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव that is 867 and 255. Again, first of all perform a division method. 255 867 25 2 जा 3 जा 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15 1 16 1 3 2 6 1 7 2 0. Here you have 1 255 2 जा 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2 1 1 0 2, that is 2 1 जा 2 2 5 जा 10. So here 51 is a required HCF of the 867 and 255. Now perform this solve according to Euclid division lemma by using Euclid division lemma. Euclid division lemma को लेमा के हेल्प से भी आपको इसको क्या करना है, निकालना है, सॉल्व करना है. तो फर्स्ट दैट इज ये आपका डिविडेंड है 867 इज डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इज योर डिविजर 255 इंटू क्वोशिएंट यू हैव 3 एंड रिमाइंडर यू गॉट व्हाट 102. सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. Remainder is not equal to 0. Remainder is, see here, remainder is not equal to 0. So we have to repeat, है ना, repeat करना है इसको. You have to repeat again. Now this will become divisor and this is your dividend. So 255 is equal to divisor into quotient is 2 plus remainder is 51. Again here remainder
is not equal to 0, so we have to repeat again. Repeat it again. फिर से इसको रिपीट करना है. That is, this will become a divisor and this is dividend. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder is 0. See here. So remainder is equal to 0. रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया. रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया. तो क्या होगा? प्रोसेस विल स्टॉप. प्रोसेस स्टॉप्ड. ओके, प्रोसेस स्टॉप, प्रोसेस रुक जाएगा. हेंस HCF of 867 and 255 is what? 51. This is your required answer. तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से HCF निकालने का ये प्रोसेस है. ठीक है, पहले आपको परफॉर्म कर लेना. वेरी सिंपल. सी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. Again, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. See, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So here also remainder is not equal to 0, तो we have to repeat it again. फिर से रिपीट करना. तो ये आपका प्रोसेस है. इस तरह से आप इसको लिख सकते हो. इस तरह से आप इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 and 3. ओके, सो अब जो दूसरा वाला बचा 1 of 2 बचा, वो आप खुद सॉल्व करो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5. सो यहाँ पे आपको क्या करना है? शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो ऑड नंबर होता है आपका इसी फॉर्म में होगा. 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में ही होगा. इसको प्रूफ करना है आपको. सो लेट A, B and A be a positive integer. Then A is equal to 6q plus r. 6q plus r, बिकॉज यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है. देखिए 6 6 6, तो यहाँ पे मेरा 6 हो गया. 6 इज अ डिविजर. तो ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लिया मैंने, फिर उसको प्रूफ करूँगा मैं कि आपका उस फॉर्म में है. तो यहाँ पे आपका जो डिविजर है, दैट इज दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिविजर, दिस इज योर कोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर. सो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6. सो पॉसिबिलिटी ऑफ r you have, that is 0 1 2 3 4 5. इतना ही हो सकता है मेरा. तो r क्या क्या हो सकता है मेरा? 0 1 2 3 4, क्योंकि आपका डिविजर जो आपका 6 आपका क्या है? डिविजर. 6 यू हैव हियर डिविजर. सो डिविजर इज व्हाट? डिविजर के आपको जो r होगा रिमाइंडर, वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा. 0 से बड़ा या फिर 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, और 6 से जस्ट छोटा यानी कि 5. ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर आ सकता है. रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी ये सब हो सकता है. सो नाउ आपको क्या करना है? यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 और क्या क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. ओके, तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है. क्या क्या मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस ये जो आपका r का जो जगह है ना, उसके प्लेस पे आपका क्या है? कुछ वैल्यू मैंने जो r की पॉसिबिलिटी है, r की जो पॉसिबिलिटी वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे पुट की. ये देखो, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 5. ये मैंने पुट किया. बस
इस एक्सप्रेशन में, और कुछ नहीं है। फिर से देखना है एक बार, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 where q is the sum integers. So let a be a positive integers. a मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है किसके, अकॉर्डिंग टू इक्वलिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू इक्वलिड डिवीजन लेमा। तो a इज इक्वल टू 6q, 6 मैंने इसलिए रखा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका 6 दे रखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 यूज किया। ओके, 6q + r इज इक्वल टू, सो वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। और r का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, जब वो 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो वो मैंने बस पुट कर रखा है यहाँ पे, बस ये हो गया। अब यहाँ से मेरा कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 6q, देन यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 × 3q हो गया। फिर a इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू अगर आपका 6q + 1 हो सकता है, तो क्या इन दोनों से 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता कॉमन। और a इज इक्वल टू 6q + 2, यस, यहाँ से आपका 2 कॉमन हो सकता है, दैट इज 3q + 1 हो सकता है। फिर अगेन यहाँ से देख लो, आप लोग कॉपी के नीचे लिखना, यहाँ पे जगह कंजेस्टेड है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर। a इज इक्वल टू 6q + 3। देखो अब 2 क्यों कॉमन लिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ऑड, है ना। एज वी ऑल नो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज अ इवन नंबर, वो क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर। तो ये जो 2 है तो फैक्टर भी होगा, है ना। 2 × समथिंग, क्या 2 का मल्टीपल तो होगा ना, 2 × समथिंग दैट इज 2 का मल्टीपल तो होगा ही, 2 का फैक्टर भी होगा, दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। 6q + 3 यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है 2 कॉमन लेना, और एक a इज इक्वल टू 6q + 4, यस यहाँ पे पॉसिबल है, हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू टेक अ कॉमन 2 दैट इज +2 अगेन, और a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू एट लास्ट 6q + 5। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूड, मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे आप। सो इसका कंक्लूजन ये होगा कि जितना भी आपका ऑड इंटीजर्स है, इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। क्यों, क्योंकि अगर 6q यहाँ पे 2 है कॉमन लिया मैंने, दैट मीन्स ये दोनों, ये सब जो डबल टिक वाला है, ये क्या शो करता है आपको, ये क्या शो करता है, इवन नंबर को शो करता है। यानी कि अगर 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इवन नंबर ही देगा, वो ऑब्वियसली आपका इवन नंबर देगा, और वो 2 का फैक्टर भी होगा, तो ये आपका ऑड इंटीजर तो हुआ नहीं, ये क्या हो गया, इवन इंटीजर्स हो गया। सो वी कंक्लूड दैट एनी पॉजिटिव ऑड integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। तो इसी फॉर्म में आपका हो सकता है। तो ये आपका कंक्लूजन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, ओके। तो ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप कॉपी कर लो, सेम टू सेम आप एग्जाम में लिख सकते हो, ओके। Here you have given in question number 3, any army contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. Number of column क्या होगा यहाँ पे, same होगा। तो what is the maximum number of columns in which they can march? तो maximum number of column जो होगा आपका, मैक्सिमम नंबर जो कॉलम होगा वो क्या होगा, जिसमें ये दोनों क्या करेंगे, मार्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका ये बैंड का मेंबर है ना, ये आपका सपोज करो ये बैंड का मेंबर है और ये आपका आर्मी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, बैंड, जैसे यहाँ पे अगर बैंड का ये है कॉलम है, ये सपोज करो n कॉलम है बैंड का, तो आर्मी भी क्या होगा, उसी सीक्वेंस में, उसी नंबर ऑफ कॉलम में क्या होगा, आर्मी को भी क्या करना है, हमको खड़े करना है, उसको उसी लाइन में हमको खड़े करना है। तो ये बैंड के पीछे आर्मी है,
तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका कॉलम है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है ये क्या होगा, ठीक है। सपोज करो कि आपका नंबर ऑफ रो इधर क्या हो गया x, यहाँ पे नंबर ऑफ रो आपका क्या हो गया आपका, मान लो इधर से रो खड़ा हुआ है तो नंबर ऑफ रो y हो गया, इसका भी आपका मान लो x हो गया। तो यहाँ पे जो है आर्मी जो है, आर्मी का 616 इज इक्वल टू आपका n इंटू आर्मी कितना है 616 है, तो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो y है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका क्या होगा 32 आपका क्या है, क्या मेंबर है, बैंड मेंबर है, तो बैंड का रो आपका x सपोज करो, पता नहीं कितना है, मुझे नहीं पता, जितना ही हो सकता है, तो ये आपका रॉ है इधर और ये आपका नंबर ऑफ कॉलम है, तो n नंबर ऑफ कॉलम होगा और ये क्या होगा x होगा। तो ये जो मैक्सिमम नंबर है n क्या है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है ये n क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसको हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस n, ओके। सो मैक्सिमम मीन्स व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम we have to find the HCF of what 616 and 32 का क्या करना है आपको HCF फाइंड करना है। So let's find the HCF, that is 32. I am using division method to finding the HCF here. 32 1 ja 32, 11 out of 2 9, here 5 out of 3 what 2, now 6 here। देखिए आपका पूरा आपका अभी कंप्लीटली ये डिविजिबल नहीं हुआ है, तो एक बार और करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 9 जा 9 2 जा 18, 1 9 से 27 1 28। सो here you have 16 out of 8, that is 8, and here nothing, so 8, now 8 is a remainder here not equal to 0, so we have to repeat again, this will become divisor and this will become dividend, so 32, 8 4 ja 32, so this is your required answer, that is 8. So here maximum number of column equal to 8 आंसर। सो ये आपका आंसर है। तो ये प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस से आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल भी रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स इसको मैक्सिमम से हमको एक माइंड सेट करना है कि HCF निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस सॉल्यूशन है। Okay, now I am going to solve question number 4. In question number 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers. क्या बोल रहा है, स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर 2 करना पड़ेगा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का। जब हम पावर करते हैं तो इस फॉर्म में ही होगा, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। सो let's prove it. So let a be a positive integers, so by Euclid's division lemma, a is equal to what 3q plus r। देखिए मैं 3 क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो उसी को यूज करेंगे। तो इस 3 को यूज किया मैंने यहाँ पे। सो वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, सो पॉसिबिलिटी ऑफ r अगेन 0 1 2, ओके इनफ। So possibility of A you have, that is 3q plus 0 or 3q plus 1 or 3q plus 2, and by squaring, okay, when you find the square, A square, that is 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये
ए स्क्वायर दे देगा आपको 9q²। यहाँ से आप क्या करो, 3 कॉमन ले लो, 3 दैट इज 3q², और यहाँ पे 3m, ओके, वेयर m इज सम इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स है। अगेन जब आप इसको लेते हो और a² यहाँ पे भी करेंगे, 3q + 1 का होल स्क्वायर किया मैंने, तो ये वाला फॉर्मूला में स्प्लिट होगा a + b का होल स्क्वायर, दैट इज 3q² + 1² + 2 × a × b, दिस विल गिव यू 9q² + 1 + 6q। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों से मैंने 3 कॉमन, मैं जो हूँ इन दोनों से 3 कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो 3 × 3q² + 2q, और ये +1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये वाला को मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, ये वाला को मैं पुट कर दूंगा 3m + 1, ओके। सो यहाँ पे m = ये वाला, कोई भी कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो वो अब अगेन अब मैं इसको करूँगा स्क्वायर, 3q + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज अगेन 3q² + 2 का स्क्वायर + 2 × 3q + 2, दैट इज 9q² + 4 एंड प्लस 3 × 6, 6 × 12q। अब यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन लो। जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लोगे, 3q² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4q एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये +1। इस 4 को मैंने 2 पार्ट में, यानी कि एक 3 और एक 1 में, 3 + 1, ठीक है, तो 3 बाहर आ गया। तो फिर ये आपका क्या हो गया, एक आपका इसको क्या पुट कर देना, m पुट कर देना, इट इज 3m + 1। सो इस रिलेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो किस फॉर्म में आएगा, 3m के फॉर्म में आएगा, या फिर 3m + 1 के फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है, ये देखो आप, या फिर 3m के फॉर्म में आएगा, या फिर 3m + 1, या फिर 3m + 1 के फॉर्म में ही आएगा। तो ये लिखना है, हेंस वी कंक्लूड दैट एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m। देखो यहाँ पे 2 था मेरा, अलग अलग था, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी मैं जब कॉमन ले रहा हूँ तो 3m + 1 के फॉर्म में, ये आपका m पुट किया मैंने यहाँ पे, m सम इंटीजर्स, ओके, क्वेश्चन में गिवन है, और इसका भी मैंने जब स्क्वायर किया तो ये भी आपका इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आप अगर देखो यहाँ पे इस 4 को मैंने 2 पार्ट में, 3 + 1, तो 1 बाहर ही है, और इस 3 से मैंने कॉमन निकाल दिया 3, ओके। तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 1.1 का। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, okay, then you can ask question in my comment section, okay, then thank you.